السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج شریک گفتگو ہیں محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب، اور ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اور موضوع گفتگو ہوگا عید کے بعد احتجاجی دھرنے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر۔ شیخ صاحب تیاریاں پوری ہیں؟ جی ہم تو ہر وقت تیار ہیں ملک کی خدمت کے لیے، اس قوم کو غلامی کی زنجیروں سے نکالنے کے لیے بہت عرصے سے تیار ہیں، بلکہ ساری زندگی یہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے اس دفعہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ عید کے بعد جو احتجاج شروع ہونے والا ہے، قوم کو بڑی جلد آزادی ملنے والی ہے جنید صاحب۔ اچھا شیخ صاحب، ستمبر کی ڈیڈ لائن پہ قائم ہے؟ جی جنید صاحب، پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ اس قوم کو جھنجھوڑنا ہے، اس کو جگانا ہے۔ جتنا زور لگائیں گے اتنی جلدی یہ قوم جاگ جائے گی۔ سوئی ہوئی ہے قوم، آپ دیکھیں ذرا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا حالت ہو گئی ہے ملک کی۔ ابھی یہ دیکھیں آپ کہ میں سوچ رہا تھا یہاں آپ کے اسٹوڈیو کی طرف آتے ہوئے کہ کتنی بھولی قوم ہے یہ بیچاری، ہر چیز ان کے سامنے کھل گئی ہے اور پھر بھی یہ لوگ باہر نہیں نکل رہے۔ اور یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میرے محترم ہیں، یہ سوتی قوم نے جگان دے ماسٹر ہیں۔ اچھا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ پہلے بھی جگا سکتے ہیں قوم کو، ان کی بڑی مہربانی۔ اگر پہلے ہماری جان چھوٹ جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، وہ تو اسی بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب بے شک ستمبر کی تاریخ دے رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو بہت پہلے حکومت کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ نہیں جی، میں تو ایک اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں نا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو اللہ ان کی زبان مبارک کرے، ٹھیک ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کب تک حکومت کی رخصتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے شیخ صاحب کی سیاسی بصیرت اپنی جگہ ہے، لیکن میرے پردہ سماج سے ابھی سے رخصتی کا میوزک ٹکرا رہا ہے۔ آپ بچے بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں، آپ منہ سے میوزک بجا رہے ہیں۔ جنید صاحب آپ میوزک کی بات کرتے ہیں، آپ کسی طریقے سے اس حکومت کی رخصتی کی تیاری کریں۔ میوزک چھوڑ، میں تو اٹھ کے بنگڑے ڈالنے کے لیے تیار ہوں، ڈول بجانے کے لیے تیار ہوں، اور گھنگرو پہن کے میں ناچنے کے لیے تیار ہوں، اپنی اس غریب مسکین عوام بھولی بالی قوم کو بیچاری کو آزادی دلانے کے لیے۔ کتنا عجیب لگے گا شیخ صاحب، آپ ساتھ سگار پی رہے ہوں گے، ساتھ گھنگرو پہن کے ناچ رہے ہیں۔ عجیب کیا لگنا ہے جنید صاحب، چھو منتر فلم میں ظریف نے ساتھ سگریٹ پیا ہے، ساتھ ڈانس کیا ہے، اور لوگوں نے حال میں سے کلیپیں کی ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ شیخ صاحب آپ نے رخصتی کا میوزک بہت اچھا بجایا ہے، اگر آپ کی حکومت آ گئی تو پھر کون سا میوزک چلے گا؟ یہ جو مجوزہ احتجاجی تحریک ہے، اس میں آپ کا کیا کردار ہوگا؟ یہی جو میں ادا کر رہا ہوں۔ کیا؟ جنید صاحب مقصد تو اس سوئی ہوئی مظلوم قوم کو جگانا ہے۔ وہ بے شک باجا بجا کے جگائیں، تحریک چلا کے جگائیں، بے شک پانی کی بالٹی ان پہ پھینکیں، یا ان کے اوپر سے رضائی کھینچ لیں، یا ان کا ون ڈش کی بجائے رات کا کھانا ہی بند کر دیں۔ رات کا کھانا کھا کے ان کو کوکی چڑھ جاتی ہے، اٹھتے نہیں ہے 12 بجے۔ اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، طوفان براخیز اٹھے گا۔ جب عید کے بعد ہم رائے کا رخ کریں گے تو بستیوں کی بستیاں قافلے میں شامل ہوتی جائیں گی، لاہور کی سڑکیں تنگ پڑ جائیں گی۔ زندہ باد۔ یہ جب شیر گونجتا ہے نا جی، تو یقین مانے جنید صاحب سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کا ٹی وی چوم لوں، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں قربان جاؤں ڈاکٹر طاہر القادری، میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ۔ واہ واہ واہ، یہ تو جاپان نے ہم پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے جنید صاحب، کہ بغیر شیشے والا ٹی وی بنا دیا ہے تاکہ ہم ایسی ہستیوں کا منہ چوم سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے،
ये जाहिर है अपना काम के लिए उधर जाते हैं, इनका एक अपना इल्म फैलाने का भी काम है। वैसे जितनी देर तक ये पाकिस्तान में रहते हैं जुनैद साहब, एक रौनक लगी रहती है और कौम जागती रहती है। अच्छा शेख साहब, मैंने वैसे नोट किया है कि जब आप अकेले हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं, डॉक्टर साहब नहीं होते, उस वक्त आप डॉक्टर साहब को जुगते भी लगा देते हैं। नहीं देखें, डॉक्टर साहब मेरे यार हैं, मैं इनका बड़ा फैन हूँ, मेरी इनके साथ मोहब्बत है। इमरान भी मेरा यार है और डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी मेरा यार है। देखें जुनैद साहब, मेरी उम्मीदों के दो ही चिराग हैं, एक इमरान और एक डॉक्टर ताहिरुल कादरी। और ये दोनों मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि मेरा जी चाह रहा था कि कादरी साहब को टीवी से बाहर खींच लूं। वो तो मैंने इसलिए एहतियात किया कि किसी तार के साथ अड़ के इनको करंट ना लगे। मैं तो खुद हैरान हो गया हूं कि ऐसे टीवी भी निकल आए हैं कि जिनके शीशे ही नहीं हैं। इस टीवी पर जब कुकिंग का प्रोग्राम चलता होगा तो हंडिया की खुशबू तो आवाम तक पहुंच रही होगी। कादरी साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। आपकी इस उम्मीद अफजा गुफ्तगू का मुझे उतना ही मजा आ रहा है जितना बगैर दांतों वाले बाबे को मटर चावल का आता है। ये क्या मिसाल दी शेख साहब? जुनैद साहब, ये कौम सिर्फ सोई नहीं हुई, इसके दांत भी झड़ चुके हैं। जो हुक्मरानों ने अपने दांत तेज किए हैं, इन बेचारों के दांत खत्म हो गए। इसलिए मेरे ज़हन में आ रहा था कि ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे लोग ही आके यहाँ पे कुछ इनकलाब बर्पा कर सकते हैं और इस कौम को जगा सकते हैं। शेख साहब, आप खुद क्यों नहीं इनकलाब लाते? कभी आप इमरान खान की तरफ देखते हैं, कभी ताहिरुल कादरी साहब की तरफ देखते हैं, और तुम्हारी तरफ देख के अपनी हंसी निकलवा लूं। जो इस काबिल हैं, जो मैं समझता हूं कि कौम को जगा सकते हैं, उन्हीं से उम्मीदें लगानी होती हैं। खुद भी हिम्मत करता हूं, भाग दौड़ कर रहा हूं, इस कौम के लिए सारी जिंदगी वक्फ की हुई है और अल्लाह के फजल से बचपन से आज तक इसी कौम की खिदमत कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है शेख साहब, इनकलाब आप खुद क्यों नहीं लेके आते? भाई यार, एक इनकलाब है तो दो बंदे देते ने, एक अगो फड़े एक पिछो फड़े तो लै वे इनकलाब। तीसरा बंदा साथ शोर मचाने के लिए होता है, अगो आगे कर लाए और सदियत हो जा, बूहे च ना मार दवी, पौड़ी चढ़न ले वेख ली जरा ठुड्डा ना वजे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। राइट वे। अच्छा शेख साहब, ये पीटीआई वालों ने एहतजाजी तहरीक से पहले कुछ और ऑप्शंस भी आजमाने की बात की है। आईनी जद्दोजहद की जाएगी, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं नहीं मानता। देखे, रास्ता एक ही है, रास्ता सिर्फ एक है जुनैद साहब, और वो है कि लोग सड़कों पे निकल आए। इनकलाब तभी आएगा जब ये शख्स इमरान खान जिसका नाम है और ये जो ताहिरुल कादरी हैं, ये दोनों बंदे बस डट जाएं। ये हुक्मरान ये बड़े ढीठ हैं जुनैद साहब, इन्होंने किसी की नहीं सुननी। इनको खींच के घसीट के नीचे उतारना पड़ेगा। उसके लिए ये जो दो बंदे हैं, इमरान खान और ताहिरुल कादरी, ये बस डट जाएं, ये किसी से ना डरें। इनके लिए ये आजमाइश की घड़ी है। शेख साहब, कादरी किसी आजमाइश से डरने वाला नहीं। कादरी को यकीन और गुमान ने आजमा लिया, कादरी को हर तूफान ने आजमा लिया, कादरी को कनाडा और पाकिस्तान ने आजमा लिया, लाहौर और मुल्तान ने आजमा लिया, हर नफे नुकसान ने आजमा लिया, हर मुश्किल आसान ने आजमा लिया, पंजाबी सिंधी बलोची पठान ने आजमा लिया, शहनशाह और बागबान ने आजमा लिया, आंखों और कान ने आजमा लिया, हर हुक्मरान और शैतान ने आजमा लिया, बाबू और किसान ने आजमा लिया, मीठे और तंबाकू वाले पान ने आजमा लिया, शक्कर चीमा और शाम ने आजमा लिया, जुनैद सलीम और कामरान खान ने आजमा लिया। हम हर कसौटी पे पूरा उतरे थे, पूरा उतर रहे हैं और पूरा उतरेंगे। डॉक्टर साहब, चलते प्रोग्राम विचों बाहर ही बाहर कड्डी दी, को बस वाला ना आ वजे। बात यह है जुनैद साहब कि मैं समझता हूं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो शख्स है, इसने अगर इरादा कर लिया तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे इनकलाब आए। वो तो शेख साहब आपने देख लिया किस कदर मुसम्मम इरादा था, किस कदर जज्बाती लहजा था डॉक्टर साहब का। अभी जुनैद साहब, जज्बाती तो ये हर दफा इतना ही होता है। मुझे तो किसी ने बताया कि सादा पानी भी मंगवाना हो तो उससे पहले यहां जरूर मार दे। पानी ठंडा नहीं, सादा चाहिए, सादा।
बल्कि इनका एक दोस्त बता रहा था कि घर जाएं तो दरवाजे पे बेल नहीं बजाते, उधर खड़े हो गए यही ताली बजाते। हल इसका एक ही है कि ये यहाँ पे टिक जाएं। अब आ गए हैं ना जी, जाएं ना वापस। और इनकी वापसी रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आवाम इनके ट्रैवल एजेंट को उठा के किसी देग में बंद कर दे, उत्ते कुनाली रख के ते मंजी पुठी मार छे और ओदे ते कोई 5-6 अमीर मुकाम वर्गे बंदे बाद। डॉक्टर साहब आपका फिर वापसी का इरादा है? जुनैद साहब, कश्तियां जल चुकी, पीछे हटने के रास्ते बंद हो गए, वापसी का लफ्ज डिक्शनरी से मिट गया, अब वापस नहीं जाएगा कादरी। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो ये मेरा कनाडा का वापसी का टिकट है जो आज इसी वक्त आपके प्रोग्राम में मैं फाड़ रहा हूं। शेख साहब यार क्या बात है, ये हुई ना बात, क्या बात, बहुत अच्छे। मार दिया। जुनैद साहब आपको चाहिए था कि यहाँ पे एक दफा डगा बजाते ढोल वाला। जुनैद बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। अल्लाह आपको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। आप समझे कि इनकलाब आ चुका। अल्लाह क्या हुआ? कादरी साहब ये टिकट आप कनाडा का नेशनल बैंक से लेते हैं? तो ये कनाडा का टिकट तो नहीं है, ये तो आपने नेशनल बैंक का चेक फाड़ दिया है। हद हो गई है। जुनैद साहब ट्रैवल एजेंट ही मारना पड़ेगा। नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद हमारे महल्ले में रहते हैं पट्टी हो रही, सलीम पट्टी वड्डा भरा है, सारे भरा इकट्ठे रहते हैं माशाल्लाह, 8-9 भरा हैं इकट्ठे रहते हैं जी, और इकट्ठे ही खाना शाना पकाते खाते थे। बड़ा अच्छा प्यार से लोग, सारे की बीवियां भी एक दूसरे से बड़ा प्यार करती थी। नवी उनकी आखिरी जो नूह आई है ना, उसने झगड़ा क्या शुरू किया, पहले सारे जो कोई खाने के लिए एक जना तकसीम करता था, खा लेते थे चुप करके जी। अब जब नवी कुड़ी आई है ना जी, बहू उनकी, वो खाना तकसीम हुआ है तो वो लड़ पड़ी है कि जी मुझे बोटी ठीक नहीं डाल के दी। वो जेठानी उसकी जो बड़ी थी सलीम भट्टी की बेगम, उसने उठ के क्या भी है कि कुड़िए बोटी ठीक है, तुम्हें तो मेख वाली बोटी दी है इसलिए कि तुम नई नहीं आई हो। कहती है मेखते नहीं निकल दी ही नहीं। उसने ऐसे पकड़ के तो योर से 3-4 दफा मारा तो मेख निकल आई। कहती है मेरे च नहीं है, नहीं जानते मैं किस तरह मेख कटा। इस पर झगड़ा चुगड़ा हो रहा था, तो जो उससे छोटी थी ना उसकी जेठानी, उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, नाराज ना हो, दूसरी बोटी डाल दो, मेरे ना बोटी बिठा ले। उसने बोटी बिठा, वो मछली की थी, उसने ऐसे करके मछली की बोटी योर से खींची है दांतों के साथ, तो वो जो परजाई पहले मेख निकाल के गई थी ना, उसके ऊपर जाके क्रम करके बोटी उसके इधर बजी है। झगड़ा शुरू हो गया बड़ा सख्त। कहती है मैंने तो इनके साथ रहना ही नहीं। वो अलहदा हो गई, अब बेचारी वो अलहदा हो गई है। बाकी सारे भरा बड़े दुखी हैं कि यार एक भरा हमारा अलहदा हो गया। मछली की बोटी समेत अलग हुई है या नहीं? मछली की बोटी तो दूसरी को जा बजी ना, वो तो यार हद यार बंदा इतने सालों में नहीं मुझसे कुछ भी सीखा। झगड़े वाली जगह जब मछली की बोटी दूजे के मुंह में जा बजी है तो फिर उसने कहां से उधर जाके बोटी उठा के निकलना था? मछली थी ना, मछली तैर के वापस आ गई। नहीं यार वो मछली ये वाली कह रहा हूँ जो बकरे की मछली होती है, तैरने वाली मछली नहीं होती। एक बात आज मेरी याद रखना है, जब तुम्हें ये भी आज बता दूं, तैरने वाली मच्छी और होती है और बकरे की मच्छी और होती है। और बकरे की मच्छी में कंडा नहीं होता कभी भी, जब मर्जी आप। मच्छी की बच्ची और होती है। यार मजाक ना करो, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बोटी के झगड़े के ऊपर उनकी नूह एक वखरी हो गई, बाकी सारे बेचारे परेशान हैं। आज मुझे ये याद आ रहा था कि ये जो इंग्लैंड यूरोप से अलहदा हुआ है, इसका भी कोई बोटी का झगड़ा था। जबरदस्त ज़हन पाया। इसे कहते ही दानिश्वरी है। दानिश्वर तो वही होता है ना जो एक चीज को देख के तो एनालिसिस निकाल के तो टू द पॉइंट गुफ्तगू करके उसके बारे में फिर अपने बयानात जो हैं, अपने ख्यालात उसका इजहार कर दे। बड़ा नॉलेज में इजाफा हुआ जो मच्छी का। यस इट इज कॉल्ड दानिश्वर। चलिए जी खबर सुने।
NSG की रुकनियत पर मोदी की मिन्नत समाजत काम ना आ सकी। चीनी सदर ने कह दिया कि चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, हर फोरम पर हमायत करेंगे। ये जो चीन के सदर कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा आयरन ब्रदर है, ये चीन के सदर की भी सरिये की फैक्ट्री है। यार हर बात भी नहीं हंसते, इधर हमारे हुक्मरानों की भी सरिये की फैक्ट्री है, तो आयरन ब्रदर जो कहा है तो इसका फिर यही मतलब होगा कि जिस तरह वो भी सरिये वाले हैं और हम भी सरिये वाले और आयरन ब्रदर हैं। वो मजबूत दोस्ती की बात कर रहे हैं। अच्छा, वैसे तो कमाल बात कर दिया इन्होंने। चाइना के सदर जनाब मोहतरम, क्या नाम है इनका? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग? यार वो मर्द है, शी कहां से आ गया? शाह जिनपिंग होगा। यार या शॉपिंग पिन को होगा। बहुत शुक्रिया आपका शॉपिंग जिन साहब। चौपो को इसका मतलब है कि मैं आपका मुंह चूम लूं, इतने प्यारे। ये चीन हमारे हवाले से हमेशा सीधी दो टोक बात करता है इंडिया के साथ, और इंडिया भी शिकायतें लगाने से नहीं बाहर आता। जिस तरह दरानियां नहीं जाकर शिकायतें लगाती सैस को कि मां जी आ वेखो एदा बंदा हुंदा है ना फ्रूट लैके जदों तो सीधा कमरे च वड़ जांदा जी। आगे से सस चीन की तरह सियानी हो तो और क्या दरवाजे के आगे रख के बेचना शुरू कर दे फ्रूट। आगे से फिर जिठानी कहती है नहीं लेके आता है फ्रूट तो आपको लाके क्यों नहीं देता। आगे से फिर सस अगर चीन जैसी हो तो वो फिर ठोक के जवाब देती है, वो नहीं मेरे हाथ लेके आता तो तुम्हारा बंदा कौन सा मुझे लीचियां छिल छिल खिला रहा था। चलो बहुत अच्छे पयम चीन, थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत से मुल्क पड़ गए हैं भारत को, खबरदार को मेंबर बनाया इसको तो। एक तो चीन ने खैर एक मर्तबा फिर सही दोस्त होने का हक अदा किया है, दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की तारीफें हो रही थी कई महाजों पे बहुत कामयाब होंगी, लेकिन इस महाज पे तो उसको मुंह की खानी पड़ी। मुझे तो ईमान से चीनियों पे इतना प्यार आ रहा है, मुझे तो मेरा एंकर फीना फीना लगना शुरू हो गया। हालांकि कितना क्यूटू है ये तो तुम कवर कर रहे हो। ये मैं पकड़ना ना कर दूं, चाइनीज है, कल से आके प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन जी अगली खबर है, पीपल्स पार्टी TORs कमेटी से अलहदा, वजीर आजम के खिलाफ नए हली का रेफरेंस दायर करने का ऐलान। ओ मेरे अमाल का यार, पीपल्स पार्टी मस्कीन का भी अंदर खाते उस घर वाला साहब हुआ है जिसमें अगर माँ की दाल पका लें तो बड़े मुंडे को नहीं पसंद, अगर करेले पका लें तो उससे छोटे को नहीं पसंद, अगर टींडे पका लो तो निक्की कुड़ी लड़ पैंदी है, जे काले छोले पका लो तो काला निक्का लड़ पैंदा है। बहुत ही अजीब हालत है। और तो यासन साहब गरम एनक लगा के कुछ और तकरीर कर रहे होते, वो खर्शीद शाह साहब जो है वो वास्कट पहन के को और लैंड ले रहे होते। इनका आपस में एक ही नहीं होता। अच्छा अगर एक हो भी जाए ना जी चलो करेले पका लो, तो फिर अम्मा बैठ के कह रही होती है कौड़ के में मार दीजिए, और बीच में से अगर को और कहते कि चलो फिर करेले रहन दियो गोंगलू पका लो, फिर अम्मा आके कह देती मिठास के में मारनी है। इनको कोई ना कोई सियापा ही पड़ा रहता है। अखीर महल्ले का कोई शरारती बंदा कह देता है तेन सिर्फ इतना पता है कि चवल के में मारनी है। इस तरह के लोग फिर आखिर में नाल ली मंगा के खा के सो जाते हैं। मैंने तो लगता है इस तरह के लोग भुखे रही थे। भूखे नहीं सोते, ये ना कहो इनका जो बड़ा कुक है ना वो आखिर पे कुछ ना कुछ पका लेता है। उसी बड़े कुक के बारे में आजकल खबरें आ रही हैं कि अमेरिका में हिलरी की फंड रेजिंग कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जो तने मुर्दा है उसमें जान डाली जा सके। तो यार ठीक है ना, उनके घर का चूल्हा बिजी हुआ उन्होंने हांडी उठाई है तो जाके अमेरिका के चूल्हे पे रख दी। कुछ ना कुछ पकाते रहते हैं वो। अच्छा अगर हिलरी हार गई फिर यार फिर घर फोन कर देंगे कि भाई जी बाजारों कुछ मंगा लो, हांडी सड़ गई जी। अच्छा जी अगली खबर सुने जी। कंबोडिया के वजीर आजम को मोटरसाइकिल सवारी के दौरान हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना। कंबोडिया के वजीर आजम को जी मोटरसाइकिल पे जा रहा था जी। इसकी अम्मा कहती रही है कि पुत ना बन वजीर आजम, LDA च क्लर्क लग जा। क्या फायदा हुआ, वजीर आजम लग के तो मोटरसाइकिल पे फिर रहा है, इधर लाटू ने CD-70 रखी हुई। चलान भी किया, सिपाही ने 2 सोटियां भी मारी।
नहीं हो सकता है जिस वजीर आज़म ने मोटरसाइकिल रखी हुई है उसको लाजमन वार्डन सोटियां भी मार सकता है, उधर बहाने लगाता रहा होगा कि भाई जी मैं हेलमेट खरीदने ही जा रहा हूँ। असल में तनहा मुझे अब मिली है, मेरे पास पैसे मुक गए हुए थे, अभी मैं खरीद के वापसी पे देखना हेलमेट पहन के आऊंगा। कबीना के इजलास हो रहा है, वो जरा सारे इंतजार कर रहे हैं और वजीर आजम प्लग साफ कर रहे हैं मोटरसाइकिल। ईमान से कंबोडिया के स्पीकर को चाहिए जब ये इजलास पे पहुंचे ना तो स्पीकर कह दे अंदर ना या बुए च कान फाड़ ले। और जब वापस जा रहा हो तो स्पीकर आवाज दे स्टैंड ऊंचा कर ले। पीछे से देखने पाएंगे। अजीजी वजीर आजम के पास मोटरसाइकिल है तो वजीरों के पास भी साइकिलें होगी। हाँ जी वहां पे तो लोग बता रहे होते हैं कि भाई जी है जिन्हें साइकिल दे कैरियर पीछे बर्फ रखी है ना वजीर खुराक है, और वो जिसकी साइकिल पीछे परांदा बजा हुआ है ना वो वजीर माहौलियात है, और वजीर दाखिला आजकल नहीं आ रहा उसकी साइकिल के कुत्ते फेल हुए और ये 3 पहियों वाली साइकिल पे आ रहा है, ये महल्ले का काउंसलर है। काजिन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनात अभी मैंने जब अपने हिकमत और दानिश का जो सेगमेंट करता हूँ सेगमेंट नहीं करता, ये कहा करो जब मैं हिकमत और दानिश के मोती बखेरता हूँ। हाँ ये तो तुम्हारी इनकसारी है ना। मेरी नहीं इनकसारी, मेरी तो बेवकूफी है, तुम्हारी इनकसारी है। तो मैं सिर्फ दानिश कह रहा हूँ मोती बखेरना करना चाहिए, डिसाइड कर लेते हैं ऐसी कौन सी बात। क्या हाथ कंगन को आरसी क्या। हाँ चलो यार ये कह लेते हैं कि जब मैं हिकमत और दानिश के मोती बखेर रहा था यार, अब लोग ये न समझे कि कहीं सिलमे सितारे का काम कर रहा था तो मोतियों वाले डब्बे को ठुडा बज गया। यार खबरों पे जब तबसरा कर रहे थे छठपरा सारी तो हमने एक अपना खबर का तमस्खर उड़ाया है जी, कंबोडिया के जो वजीर आज़म है वो हेलमेट पहने बगैर मोटरसाइकिल चलाते हुए चलान करा बैठे। यार ये वैसे सीरियसली अगर इसको देखें तो देखो उस एक खबर में हमारे लिए सीखने की कई बातें थी। कानून का एहतराम, कानून सबके लिए बराबर, बिल्कुल, वजीर आजम का मोटरसाइकिल पे सवार होना जी और फिर हेलमेट ना पहनना, बिल्कुल। अब मगर इसमें और बहुत सी चीजें हैं, साइकिल का इस्तेमाल, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल अगर सेव होके किया जाए। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे ये मोटरसाइकिल साइकिल के लिए अलहदा ट्रैक नहीं है, विच ही सारे घुसे होते हैं तो बड़े बड़े खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं। मगर इनको अगर एक ड्राइंग में कर दिया जाए, साइकिल का अलहदा ट्रैक बनाया जाए तो ये अपना कानून शनून तो एक पासे रह गया, इसमें ट्रैफिक कम बहुत ज्यादा हो जाएगी, सड़कों पे जगह बड़ी मिल जाएगी, फिर सेहत बड़ी अच्छी हो जाएगी, फिर पेट्रोल की बड़ी बचत है जो हम मिनटें काट के तरले करके खदा वास्ते पेट्रोल लेते हैं, पोल्यूशन खत्म हो जाएगी यार। सबसे बड़ा देखो जरा यूरोप वाले इसीलिए तो चीख रहे हैं, हर सड़क पे अब उन्होंने साइकिल ट्रैक लाजमी करार दे दिया है और पूरे यूरोप में एक क्रेज है लोगों में कि यार ये व्हीकल से जान छुड़ानी है, ऑटोमोबाइल से जान छुड़ानी है, साइकिलों की तरफ आना है। बाकायदा मुख्तलिफ स्कीमें लड़ा रहे हैं, जेल लड़ा रहे हैं, तदबीर इख्तियार कर रहे हैं। अभी मैं कहीं देख रहा था 2-4 दिन पहले कि बरतानिया में उन्होंने स्कूलों के लिए एक कैंपेन शुरू की है कि बच्चों को इनकरेज किया जाए कि साइकिल की तरफ आए और उनको साइकिल जो है वो फ्री तकसीम की जाए। तो हमारे यहाँ, मैं तो बल्कि सच्ची बात है, उस दिन ये रिपोर्ट पढ़ के सोच रहा था कि हमारे यहाँ कम से कम एक वजीर आला है जिसमें इस तरह का काम करने की पोटेंशियल भी है और विल भी है, और वो है शहबाज शरीफ साहब। उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि बजाय आप लैपटॉप तकसीम करें, आप स्टूडेंट्स में साइकिल्स तकसीम करें। 2-4 किलोमीटर का जो फासला है वो बच्चे साइकिलों पे करें, फिर किसी एक जगह पे तजर्बाती तौर पे सही एक साइकिल ट्रैक बना के तो देखें। चलो माल रोड पे ही बना ले, ये जो बड़ी बड़ी 3-4 सड़कें हैं, आपने मेट्रो पे इतना पैसा लगाया, ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, इसमें तो एक लाइन ही खींचनी है, साइड पे एक लाइन खींच दें अगर आप रंग की खींच लें, ये फुट रख के हो जाता है, फुटा रख के अगर पेंसिल से भी बनाए मगर वो मिट जाती है, तो रंग की लाइन बना दे, उधर साइकिलों वाले चलते रहे, वो 2 फुट जगह दे दें उनको। इससे मेरा ख्याल है बहुत सारे फायदे। पार्किंग का मसला भी, जहां तुमने फवायद गिनवाए पार्किंग भूल गए, पार्किंग का मसला हल हो सकता है। जहां पर एक गाड़ी खड़ी होती है वहां पर 20 साइकिल खड़े किए जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ा
हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, नफसियाती मसला है। हमारे यहाँ साइकिल गुर्बत की अलामत है। अगर इसको गुर्बत की बजाय हम फिटनेस का सिंबल बना लें ना हमारे ज़हन में, यार ऐसी नौजवानों का fitness- क्रेज बन जाए, फैशन बन जाए। जी 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 जी, मैंने तुम्हें पहले भी एक दफा इसी गुफ्तगू में सुनाया था। हमारे कुजना वाले में बड़े मशहूर पहलवान है सईद पहलवान, वो सईद लोन साहब, अल्लाह ताला उनको और ज्यादा लंबी जिंदगी दे, मेरा ख्याल है 90 क्रॉस कर गए हुए। आज तक वो साइकिल पे फिरते हैं और बेहतरीन वो सेहतमंद आदमी है। पूरी दुनिया में यार, चीन में जो उनकी सबसे बड़ी साइकिल साज कंपनी है फ्लाइंग पिजन, उसने इस साल अपने पिछले सारे जो प्रोडक्शन के रिकॉर्ड थे तोड़ दिए हैं। एक साल में 5 करोड़ साइकिल बनाए हैं फ्लाइंग पिजन, चाइनीज कंपनी ने। इसका मतलब है साइकिल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ गई है। बल्ले हमारे अच्छा, हमारे प्रॉब्लम पता है क्या हुई है, ज्यादा साइकिल से जो हम दूर होते जा रहे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है, जहां और मैं कह रहा हूं कि गुर्बत की अलामत बन के रह गए, बेचारा गरीब आदमी की सवारी है, वो मोटरसाइकिल पर हम कन्वर्ट हो गए बहुत तेजी के साथ। ये जो चाइनीज मोटरसाइकिलें आ गई हैं, अब 10-15 हजार में मोटरसाइकिल भी मिल जाती है और 10-15 हजार की नई साइकिल आती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं साइकिल की बजाय मोटरसाइकिल ले लो, और मोटरसाइकिल में जो एक्सीडेंट्स हैं, पोल्यूशन है, हम हर वक्त रोना रोते हैं। मोटरसाइकिल का, स्कूटर का एक सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मैं तुम्हें बता ही नहीं रहा। जितनी देर मैं साइकिल पे था ना, तुम्हारी परजाई बिल्कुल नहीं थी मेरे ऊपर रोब डालती, क्योंकि अगर वो रोब डालती थी कि खबरदार, तो मैं पैदल ही बाहर निकल जाता था, नुक्कर से साइकिल किराए पे लिए और दफ्तर दौड़ गए। अब चूंकि स्कूटर है मेरे पास, वो निकालना पड़ता है, और इसलिए फिर मिनते मुनते करके तो मिनते करते करते जो 2-4 बार हो चुके होते हैं। यार तुमने जरूर इसको बढ़त करनी होती। वजाहत कर रहा हूँ यार, खुद जो मान रहा हूँ कि मान रहा हूँ, तुम बड़ा एहसान कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी खुली किताब है, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है। हाय हाय हाय, देखो यार, एक टीपू सुल्तान, एक अकबर बादशाह, और एक ये इनकी जिंदगी खुली किताब हुई। क्या बात। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी थोड़ी खुली किताब है, तुम्हारी कमर ज्यादा खुली किताब है। ये कमर यार अच्छा भला देखो, इतना प्यारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, खुद ही टॉपिक जोड़ा है। आई एम सॉरी, वापस आते हैं। वाकई साइकिल जो है ना जी, इसको अहमियत देने के लिए गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। और ये वाकई तुम्हारी बात ठीक है कि पंजाब वैसे भी बड़ा सूबा है, यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है। हर दूसरे दिन इधर लाहौर में ट्रैफिक का स्यापा सुनते हैं हम, सारा लाहौर बंद हो जाता है ट्रैफिक की वजह से। यहाँ पे कंपेन शुरू करनी चाहिए हुकूमत को साइकिल के लिए। अच्छा चलो, इससे पहले कि हम कैंपेन शुरू करें, एक छोटा सा आपको दिलचस्प सर्वे बताता हूँ। हमारे जो रिसर्चर है फारूक कैसर साहब, उन्होंने अपने ऑफिस में एक सर्वे किया। फारूक कैसर साहब जो कुछ नहीं कहना, बहुत इंटेलिजेंट नौजवान है, कुछ नहीं कहना। नहीं, तुम तो गलत बात करने लगे हो। भिंडी जैसी शक्ल कहोगे? लो अल्लाह माफ करे, एक चीज नजर जो आती है तो उसका जिक्र क्यों करे बंदा। अच्छा मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने दानिशवर हैं कि मुंह से ही हकीम भी लगते हैं। बात तो सुनो, उन्होंने अपने पार्किंग स्टैंड में जाके एक जायजा लिया है। 740 मोटरसाइकिल्स खड़ी रोजाना हमारे यहाँ होती हैं, 56 गाड़ियां खड़ी होती हैं, कारें, ठीक है, और साइकिल कितने खड़े होते हैं? 3। ईमान से? हाँ जी। होए अब अंदाजा लगा लो। मैं ये यहाँ पे हैरान हो रहा होता हूँ लोगों को देख के कि करोड़पति, अरबपति, लाखपति लोग जो है ना जी, वो गड्डी पे सवेरे सवेरे बैठते हैं, जिम जाते हैं गड्डी पे बैठ के 5-6 किलोमीटर दूर, और उधर जाके गड्डी पार्क करके तो जिम में घुस के साइकिल चलानी शुरू, और उसका बकरा 20-25 हजार रुपया भी देते हैं। अब बंदा पूछे भाई तू करो ही साइकिल लेके निकले। में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, किराना फरोश हमारे यहाँ कमोबेश हर गली मोहल्ले में एक लाजमी किरदार होता है। बज़ाहिर तो ये अवामी खिदमत के दावेदार होते हैं, लेकिन आवाम को इनसे बेपनाह शिकायत भी होती हैं। इन्हीं शिकायत पर बात करने के लिए आज हमारे अलामती कटहरे में खड़ा है एक किराना फरोश। किसी ने गलत शिकायत लगाई है जनाब आपको। मैं तो 19 साल से उसी दुकान में बैठा हुआ हूँ, लोग मुझसे खुश हैं, मैं लोगों से खुश हूँ। मैं तो महल्ले वालों की खिदमत कर रहा हूँ जनाब। केड़ी खिदमत करने तू महल्ले वालियां दी? मकान दे मथे ते तू टैलां लवा लियां ने, नुक्कर ते एडा सारा लेला बने है।
ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 1 to 5 ਹੈ ਅਗਲਾ ਪਈਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ये बड़े थानेदार का लड़का ही पहिया उठा सकता है जी, निके थानेदार का नहीं उठा सकता। ਉਹ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਬਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ अच्छा यार मेरी बात सुनो, सवालों के जवाब दो, इल्जामात का दिफा करो। जी हुक्म करें जनाब। या सबसे बड़ा इल्जाम तो तुम पे यही है कि तुम लोग मिलावटशुदा अशिया फरोख्त करते हो। ओ जनाब, हम कौन सा अंदर फैक्ट्री लगा के बैठे हुए, आगे सेलमैन हमें माल दे जाते, हम आगे बेच देते। यहां तक तो तुम्हारा जवाब दुरुस्त है। लो जी मैनू इजाजत दियो, मैं फ्री हो गया। ठहरो ठहरो, लो जी फिर फड़े गए। मेरा मतलब है यहां तक तो तुम्हारा मौकफ दुरुस्त है कि तुम बराह रास्त मिलावट के मुर्तकिब नहीं होते, लेकिन जानबूझकर मिलावटशुदा अशिया खरीदते हो सस्ते दामों ताकि अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सको। अजी तो वो जो मिलावट करते हैं उनको लाके इधर खड़ा करें ना, मुझ मस्कीन को पकड़ने के लिए आपने क्यों बहुबिला भेज दिया है? आराम से बैठो, कानून का मजाक उड़ा रहे हो तुम। नहीं जनाब, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ, पूछे उनसे, मेरी दुकान पे पहुंची हैं तो मैंने आधी डब्बी सिगरेटों की दी है, नहीं दी जी? ਮਾਚਸ ਦੀ ਸਾਥ नहीं। ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ और तुमने सिगरेट का पैकेट रिश्वत लिया उससे? ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬਾਊ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਈ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ वैसे क्या मतलब? वैसे ही ली है, तू मेरा फूफी का बेटा है। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਗੰਢ, ਉਧਰ जवाब दे। सर इसने जो किराए की दुकान ली हुई थी ना, उस पे 2 नंबर चीजें बेच करना उसी दुकान का मालिक बना हुआ है। तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हारी तरफ तो 5760 बने हुए हैं। और मिल जाएंगे पहली को क्या हुआ है? लो जी, हमेशा यही बहाना लगाता है कि पहली तारीख को पैसे मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ चलो मल्लेदार है, मेरे मल्ले में इसकी दर्जी की दुकान है, कोई बात नहीं, हम साया अपना। पहली तारीख को इसकी दुकान पे पैसे लेने जाए, आगे कागज लगा होता है बवजह फौत की दुकान बंद है। तीसरी चौथी दफा जब वही बोर्ड में, और मैंने कहा दोनों तरफ ही झूठ लिखा हुआ है। क्या मतलब यार तुम्हारा? मैंने तो तुम्हें ना कभी मस्जिद में देखा है, ना मैंने कभी तुम्हें किसी फौत की जनाजे पे देखा है। दुकान तुम्हारी किस लिए बंद हो? और यार खानदान में फौतगी हो जाती है, इसमें क्या है? ओ जनाब, मगर ये भी तो ज़हन में आता है ना कि इनकी तरफ फरिश्ता कैलेंडर देख के ही आता है। हर पहली को इसकी दुकान बंद होनी होती है। 2 तारीख को जाए तो कह देता है मैंने पहली का वादा किया था, अब अगली पहली को आना। अच्छा तुमने अभी तक मेरे मिलावट वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। और जी बताया तो है कि मिलावट शुदा माल पीछे से आता है, हम खुद तो मिलावट करते नहीं है। अगर खालिज करके महंगा ले लें तो गाहक नहीं खरीदता, वो कहता है कामे की दुकान से सस्ता मिल रहा है, तुम क्यों महंगा बेच रहे हो? लोगों को भी असल में आदत पड़ गई हुई है जनाब, खिदमतगार लोग जो हैं उनकी अब वैल्यू ही कोई नहीं। यही लोग जाके बड़े स्टोरों से खुद ट्रालियां चला चला के महंगा सौदा खरीद के ले आते हैं, इसलिए कि लोगों को उन स्टोर्स पर एतबार है, एतमाद है। तुम लोगों ने अपना एतबार खो दिया है। और जी उन पे इतमाद नहीं होता, उनकी दुकान में ठंड होती है, एसी चल रहा होता है, लोग आंखें बंद करके चुप करके उधर सैरो तफरी करके वक्त गुजार के मिलावट वाला सौदा ही ले आते हैं। हमारी दुकान पे खड़े होके चुके गाहक ऐसे ऐसे बेचारा करके सौदा ले रहा होता है, उसे वैसी खिंच चढ़ी होती है, हर बात पे कह देता है सही मिर्चें दे दो, सही हल्दी दे दो, सही चाय दे दो। हमारे यहाँ भी वही कुछ बिक रहा होता है जी जो ट्रालियों वाले स्टोरों पे बिक रहा होता है। क्यों जी पुटा साहब? मिलावट 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 पट्टी ਨੂੰ ਪੁੱਟਾ ਗਿਆ ਜੇ ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸਨੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਵੋ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਓ ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। और भाई जी उसकी वजह मिट्टी की मिलावट नहीं थी, आप ठंडे तेल में बेसन डाल बैठे थे इसलिए घोड़े बन गए थे। ਤੇਲ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। तो मैं गरम करके बेचना, गरम तो आपने खुद करना था ना जी। सर खराब और एक्सपायर्ड चीजें इसने दुकान पे रखी हुई हैं। मैं केचप की बोतल लेकर आया हूँ, घंटा उसे ऐसे ऐसे करता रहा हूँ, गुट निकल गया, केचप नहीं निकली। तो तुमने फिर गुट में पकौड़े लगा के खाए होंगे। केचप खुश्क हुई होती है बोतलों में। और भाई जी केचप खुश्क नहीं थी हो गई हुई, केचप ने अंदर से आपको देख लिया था, इसलिए वो अंदर पसर गई थी, जैसे स्कूल जाता हुआ बच्चा नहीं एकदम पसर जाता, इस तरह केचप ने आपको देख के शोर मचा दिया होगा, वरना खुश्क कहां से हो गई? हर बात का बहाना मौजूद है। हाँ जी जनाब जी, हर गल का मैं दी दुकान तो 15 साल तो बोतल पी रहा, कदी टकार नहीं आया। चल तेनू नहीं आया, बोतल नूं ते आउंदा है। मिलावट वाली 2 नंबर बोतल। अब पिछले दिनों लाहौर में अथॉरिटीज ने छापे मार के
कम व बेश 17 दुकानदारों को गिरफ्तार किए और 2000 केजी से ज्यादा जहरीली अशिया, मिलावट वाली नहीं, जहरीली अशिया बरामद की हैं। अच्छा, फिर वो चीजें जाया कर दी, जाहिर सॉरी जी। हाय हाय हाय, ये आवाम एवं ही हुकूमत के खिलाफ हुई। ਉਹ ਜ਼ਰੀਲੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। हाँ बिल्कुल यार, तुम लोगों से हमारी सिर्फ इतनी सी इस्तदा है कि तुम लोग 11 महीने लूटते हो, सिर्फ 1 महीना रमजानुल मुबारक का जो है उसमें तो अवाम को बख्श दो। इबादत करें राज्य के, अल्लाह खुद ही बख्श देगा। मतलब है अवाम पे रहम किया करो, ये भी इबादत में शामिल है। जी सुनने पिया, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।